I have been doing these online courses, and with this board's idea that we meet once a week and share whatever is top of the mind, some maybe questions, some personal questions, some thing, and everybody is, because in the spirituals matlab pursuit, तो कोई ना कोई आंसर दे देता है या कोई नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। और ये 40-45 मिनट्स जो हम लोग शेयर करते हैं, इट इज लाइक समथिंग एनरिचिंग, थोड़ा दूसरों के भी व्यूज पता चलते हैं, एंड एनी टॉपिक इज वेलकम, तो उसका कोई एजेंडा नहीं होता है। तो एंजेलिक मधु, आई डोंट नो यू, but you look very angelic, Yes. bright, and I'm Swati's friend. I live in Kolkata. And my spiritual journey started in 2009. And since then, I have been following on and off. But since 4 years, I have been into this practice with Vishal Avatar sir. And I'm trying to do my bit. Whatever little I can help. Great. Yes. अनुराधा मैडम, आप ऑडिबल नहीं हो। ये हेडफोन ले लिया, रस्ते का माल सस्ते में ले लिया आपने। हाँ, सस्ते में ले लिया, कोई बात नहीं। आजकल तो मैं 1 महीने से घर से ही नहीं निकली हूँ, तो जो है उसी से काम चल रहा है, और सस्ता भी ले लिया तो, लेकिन जो महंगा था वो चल नहीं रहा है। जो सस्ता है वो चल रहा है। Anyway, so let's begin this, and today I thought that I'll speak this week. Somehow I have come across this chakra system more than usual, and the whole body, even in angelic, like, is it angel therapy or what is it that sir teaches you, like the sir that you mentioned, Madhu? Unmute. No, basically it's not angelic therapy that we learn from him. It's a constituted course that we learn from him. It's a 1-year course that we did with him. I had been with him since 4 years, and like it's a very wide subject. Basically, it is like why we are here on earth. What is our purpose of life? This is what we learn from him. Okay. Yeah. So I think any spiritual student or any person, or whichever things we learn, pranic, whatever, we go through this, that 7 chakras, 7 this. Yeah. So, so starting with Mooladhara, everybody knows that, so this is nothing new that I'm going to say, but I have been doing this meditation for about a week now. And it is really, sort of making me light, making me feel more energetic. Of course, the meditation, it takes a lot of time. And the way I am following this time, like many years I have done it many other ways, just to, do with the chakras and specific colors or specific sound. And just to visualize that, and then do meditation. That's how I have done. But this time something new that has come to me is that every like chakra, Mooladhara, Swadhisthana, is also associated, like some our body parts, like the organs. And so strengthening, say, even if I do 1 hour meditation or 2 hour meditation on one chakra, and send energy to those body parts, like so right now I'm on the Anhat. So on the Anhat, stomach, heart, uh, liver, kidney, and I'm like sort of giving, I'm feeling that, those body parts are getting energy. And so this has been my experience this week, and so I wanted to share this. And here, and we are also doing this, both will know that there are 6 chakras, and one is called the Sahasrara Sthiti in the things that we are following. So it's not a chakra or it's not something, but it's like a state. The teachers that we are following say that it's a state, and you reach that state once all those petals and all those frequencies you can access. So 6 chakras and the 7th state. So anybody has any, like experience with these chakras, or are they important, or how are they important in your life?
Yeah, please. Yes, मैं बोल. बोलूं? हाँ, सो सबसे पहले तो मैं ना ग्रेटिट्यूड है बहुत सारा मधु जी को कि वो एक्चुअली एक इनका मैजिक 5 करके ग्रुप है 12 अच्छा. to 130 में ना, ये 4 गर्ल्स हैं और ये लोग ग्रेटिट्यूड और वो जादू की एक रोंडा बायन की एक बुक है, उसके बारे में एक्सरसाइज है वो कराते हैं. तो इतना ज्यादा, इतना इन्होंने ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद 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 सीखा मैंने. मैं सपने में भी धन्यवाद बोलता रहता अब तो, और किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है उसको भी 3 बार धन्यवाद लिखकर भेजता हूँ. तो चक्रास की जो बात हो रही है, तो मैंने तो क्या किया, अपने फोन में चक्रास का वो लगा लिया है, एक फोटोग्राफ लगा लिया. तो एवरी टाइम आई ओपन, आई रीड समथिंग अबाउट ए चक्रा, लाइक मूलाधार वगैरह. सेकंड इज कि जब मैं बैठता हूँ, लाइक कभी भी बैठा हूँ, मैं अगर अपने बालों को छूंगा तो मैं ऐसा विजुअलाइज करता हूँ कि सहस्रार चक्र है. तो मैंने शुरुआत तो यहाँ से की थी कि ग्रेटिट्यूड देना, कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. फिर अब मैंने क्या किया है कि अब मैं इसको ना थोड़ा सा फील करता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, फील करता हूँ. अब जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ या मैं सुबह शावर लेता हूँ, तो उस समय भी मैं अपने सारे चक्रास को मतलब थोड़ा एक्टिवेट करता हूँ. ये जग जा भाई, विशुद्धि चक्र जग जा, ऐसे करके. तो दिस इज ए प्रैक्टिस विच आई एम डूइंग. और उससे हुआ क्या है कि मेरे नेक में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने विशुद्धि चक्र से थोड़ी बात की, थोड़ा मेडिटेशन किया, थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिया, तो वो अब थोड़ा ठीक हो रहा है. मेरे लोअर बैक में भी थोड़ा था, तो वहां पे स्वादिष्ठान चक्र है, तो स्वादिष्ठान चक्र को थोड़ा सा मैंने ग्रेटिट्यूड दिया कई बार. तो मेरे बॉडी के चक्रास थोड़े से एक्टिव, मतलब आई एम फोकसिंग देम इंटेंशनली एंड कॉन्शियसली. सो इट इज वर्किंग फॉर मी. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. यस, डेफिनेटली मैंने भी अपने बालों से बहुत बात की है. और ये जो मैं बोल रही हूँ कि एक चक्र पे टाइम लगाना, उसमें यही होता है कि हम बात कर रहे होते हैं. जैसे कि मैं पेट से बात कर रही हूँ या किडनी से बात कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट पूरा साइंस के पूरे जो थ्योरम्स, मतलब वो जो डायग्राम्स थे, वो सामने आ जाते हैं कि 4 वेंट्रिकल्स, एंड व्हाई वर दिस 4 वेंट्रिकल्स नेसेसरी इन द हार्ट, एंड व्हाट इज द हार्ट डूइंग. ये पूरी कॉन्वर्सेशन मेरे हार्ट के साथ हुई. अब वो चाहे मैं ही बोल रही थी, but you know, like the heart and stomach together, and they form this like kind of group in the anhat, like विज्ञान में कोश अगर हम दूसरे वाले तरह से बोले कि soul, it is in some sheath, and this is all these organs are in say एक क्लस्टर में. तो वो फूड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारी एनर्जी में, ताकि हम में एनर्जेटिक रहे. तो ये कॉन्सेप्ट बुक्स में भी होता है, कुछ नहीं, बट व्हेन आई वाज लाइक डूइंग इट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड सेशन, तो मुझे ये सब समझ में आया. तो फिर ग्रेटिट्यूड तो अपने आप से हुआ कि यार हम लोग खाते हैं रोटी सब्जी, और उससे मिलती है एनर्जी, ताकि मैं बात कर सकूं, अपना घर का काम कर सकूं, पढ़ाई कर सकूं, और सोच सकूं, और जीवित हूं. आई मीन सच अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो जैसे बोलते हैं कि E इज इक्वल टू MC², तो M हम देते हैं, मैटर हम देते हैं, और वो एनर्जी बनाता है. तो स्टमक भी वही काम कर रहा है, हार्ट भी वही काम कर रहा है. हार्ट मतलब दूसरी तरह से काम कर रहा है, बट ये जो है उसमें इतनी इंटेलिजेंस भरी हुई है. और हम मतलब बिना जाने, वो जैसे कि कार हमने खरीद ली और अब हम उसको सिर्फ मतलब एक सुबह स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने आप स्टार्ट मतलब ऑटो मोड में चलने लगता है. लेकिन जब उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो तब मतलब कितनी ग्रेटिट्यूड तो कम शब्द है. मतलब पूरे साल भर, साल भर क्या, इतने सालों से वो लोग काम कर रहे हैं, ये मेरे को लगा. तो वेलकम निवेदिता, वेलकम रश्मि, एंड मधु, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, यू आर लाइक नॉडिंग, सो या. नहीं, whatever you said is very true, अनुराधा जी, कि जब हम अपने हार्ट चक्र पे कंसंट्रेट करते हैं तो रियली वो ग्रेटिट्यूड आता है कि how much like we are able to do with all our body parts and everything. Thank you. So hello निवेदिता, निवेदिता जी, Yes, hello, हाँ जी. आज मैं ना सरप्राइज हूँ. Actually, I decided to join and I am into Reiki. I'm Reiki Grandmaster. So आज आपने जब लिख दिया, जब मैंने बोला कि मैं ज्वाइन करूंगी, तो आपने लिख दिया कि आज चक्रास.
और मैं ना आप लोगों का सुन रही थी लास्ट 2 टाइम से, एंड आज आई वाज फ्री, तो मैं सोच रही थी चुपचाप सुनने के लिए आ रही हूँ। तो आप तो चक्रास पे ही जो मैं रोज बोलती हूँ कराती हूँ। एक्चुअली इन आवर एट्यूनमेंट्स वी यूज कुंडलिनी जागरण एंड वी वर्क ऑन चक्रास, एंड इवन अभी कोविड की हीलिंग्स, आई वाज इनटू रेकी हीलिंग्स, तो वी वर आई डू ऑल दिस। तो आज आपने वही शुरू कर दिया। तो तो आई थिंक वो इन द एयर होता है ना, कई बार इन द एयर सब्जेक्ट होता है शायद इसके लिए। और इन द एयर होने की क्या अगर हम सांस ले रहे हैं तो कुछ चीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वो किसी भी हफ्ते किसी भी दिन हो सकता है। तो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट टू वेलकम यू निवेदिता। और अब थैंक यू। थोड़ा सा 2-4 शब्द अपने बारे में और बताइए, क्योंकि आप पहली बार आई हैं। आप कहाँ रहती हैं ओके, और रेकी में क्यों इंटरेस्ट है आपका? अच्छा ठीक है। आई एम इनटू रेकी लास्ट 7 इयर्स, और मैं आई थी क्योंकि आई हैड स्लिप डिस्क और आई वाज एडवाइज सर्जरी एंड आई वाज ऑन बेड। वैसे आई एम इनटू मेडिटेशन लास्ट 10 इयर्स से आई एम डूइंग इट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हील माई सेल्फ थ्रू मेडिटेशन। आई वाज ऑन बेड फॉर 1 ईयर, है ना, और 3 मंथ्स तो बिल्कुल ही मैं बेड पे ही थी, और मेडिटेशन कर करके 3 मंथ्स पूरा बेड रेस्ट, नो सर्जरी। तो मेरी मूवमेंट्स भी बंद हो गई थी, इवन टोस की, एंड मतलब पैर पूरा एकदम विद पूरा नम एंड नमनेस एंड एवरीथिंग। तो दैट टाइम आई वाज इन तेजपुर। अभी राइट नाउ आई एम इन दिल्ली। सो आई केम इनटू, देन आई स्टार्टेड, मुझे फिर रेकी भी साथ में, आफ्टर हीलिंग माई सेल्फ आई जॉइंड रेकी, और मुझे बेनिफिट्स होने लगे। देन आई डिड आगे एडवांस टू हेल्प पीपल। मास्टर्स इसलिए किया कि उनको सिखा भी सकूं, तो तब से हूँ। एंड देन आई एम इनटू एंजल थेरेपी भी किया है, एंड वो हो गया लास्ट 2-3 इयर्स से। आई एम इनटू विद एंजल्स आल्सो, एंड टेरो रीडिंग भी, वो क्योंकि शायद वो मेरा एनर्जी होगा, तो आई एम इनटू ऑल दिस। एंड आजकल नया शुरू किया था लास्ट ईयर, जो बन रहा इस सब में। तो कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोग फिर भी हील नहीं होते, क्योंकि वो उनका कार्मिक भी है, डेस्टिनी भी है, तो बहुत सारी चीजों में। देन आई स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी भी, नंबर्स का, कि कहाँ पर एनर्जीज वर्क करी, साइंस। तो इन सब चीजों को भी स्टडी कर डाला, बिकॉज इट वाज देयर इन टेरो। वी लर्न नंबर्स एंड ऑल दैट वे। इट्स ऑल अबाउट मी, एंड मतलब आई एम इनटू दिस पार्ट, हीलिंग्स एंड ऑल। पर आप लोगों का ये सुनने से अच्छा लग रहा था, लास्ट 2-3 बार वाला वो जो सुना था, तो सारे अपने अपने किसी लर्निंग्स और जर्नी पर बात करते थे, वो अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि सबके अपने क्वेश्चंस रहते थे। और सबसे मजेदार था वो बोध का, जो मुझे एक मच्छर वाला जो था पार्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कार्मिक वाला, कि उसको काटना है, तो वो वाला। तो anybody if they have not heard, welcome निवेदिता। और थैंक यू। तो निवेदिता को मैं काफी अभी कुछ तो समय से जानती हूँ, एंड सच अ स्वीट पर्सन। तो इफ पीपल डोंट नो, तो बोध ने एक मच्छर का क्वेश्चन आई थिंक लास्ट सेशन में ही डाला था। तो बोध, और फिर उसको मतलब कि मच्छर को काटने देना है या क्या कर्मा है, तो उसका एंडिंग क्वेश्चन ये था कि अगर कोई मच्छर को मुझे काटना है और वो मेरा कर्म है कि उसे काटना ही है, और मैंने प्रोटेक्ट कर दिया सॉक्स पहन के, तो क्या वो जो कर्म था वो 0 हो गया, या वो दोबारा से काटेगा जब तक वो काट नहीं लेगा तब तक? ये था क्वेश्चन। मतलब मैं उस दिन भी यही मतलब इसमें लग रही थी कि मुझे ये एक तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स में कर्म होता है। जो एनिमल किंगडम है या प्लांट किंगडम है, उनमें ग्रुप सोल होती है, उनकी लर्निंग अलग किस्म की होती है। ये कर्मा जब हम लोग ह्यूमन बर्थ लेते हैं तब से कर्मा शुरू होता है। तो इसके लिए उस बात का ठीक से जवाब नहीं मतलब हो सकता है कि मच्छर और ह्यूमन बीइंग का। और लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरह से देखें, मैंने जब उसको थोड़ा उसी दिन सोचा था, तो मुझे लगा अगर कोई आदमी मुझे मारने वाला है और मैंने प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को, तो देन ही हैज डन हिज कर्मा ना, he has completed his karma, he has acted on his karma, but it is now my duty to protect myself. That is my thought on it. So that's how I feel about it. हाँ मधु, आपको कुछ बोलना था?
हाँ डेफिनेटली, अगर कोई मच्छर हमें काटने आ रहा है तो दिस इज व्हाट आई फील अगेन कि वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशन लेना एज ह्यूमन, एज एन अवेयर ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको मारो मत। अगर आपको एक कर्मा, नया कर्मा नहीं क्रिएट करना है तो यू शुड नॉट, मतलब उसको मारना नहीं है हमें, बट डेफिनेटली हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने में देयर इज नो हार्म। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी कर्मा विद दैट मॉस्किटो। तो आई थिंक वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। प्लस जो अनुराधा जी ने कहा वो एकदम सच है कि देयर इज अ ग्रुप सोल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये लोग का ग्रुप एक्टिव, ग्रुप के हिसाब से दे वर्क। तो इवन अगर वो आपको काट रहे तो इट इज देयर नेचर, राइट अनुराधा जी? तो इवन आई डोंट थिंक दे आर क्रिएटिंग अ कर्मा, कांट से मच, बट आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए। यस डेफिनेटली। वेलकम रश्मि, थैंक यू मधु। आई या प्लीज रश्मि, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। वेलकम Hello रश्मि। everyone. Hello. Thank you. I am little perplexed about कि कण-कण में ईश्वर पत्ते पत्ते में होते हैं कि नहीं होते। As per Gita, it is said कि होते हैं, but as per ब्रह्म कुमारी they say कि ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब मनुष्य का ही वो होता है, कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि पत्थर में भगवान है, पत्ते में भगवान है। What we learn, ये मतलब still I am dicey कि क्या होता है। अच्छा, तो मैं दोबारा से ये कहना चाहूंगी, कण कण में भगवान है, वो मैं उससे वो नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट पार्ट। लाइक दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, अगर हम बोलें भगवान है। एंड बट जो सोल, जितना कर्मा या जितने सोल लेवल्स का मैंने पढ़ा है, जैसे ह्यूमन बींग्स कैन इवॉल्व टू गॉड स्टेट इवन इन द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। तो लेकिन वो वाले जो अवेलेबल है वो से उन वो प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए वो डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन कि वो उसमें भगवान है, हाँ उसमें एनर्जी है, वो फील करते हैं, उनका लाइफ स्पैन अलग है, उनकी लर्निंग का कर्व अलग है, और उनकी लाइफ स्पैन अलग है। तो मैं इसको ऐसे समझती हूँ। तो मेरे मन में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। पर हाँ, जैसे कि किसी मैं अगर मतलब जानकर पत्थर को ठोकर नहीं मारूंगी, पत्ते को तोड़ूंगी नहीं, वो उतना मतलब मैं उतना मतलब, क्योंकि उसमें भी एनर्जी है, उसमें भी कुछ तरह का सेंस है या ये है, ऐसे मेरे मन में थॉट। I would like to add, रश्मि, I feel कि कण कण में भगवान नहीं है, कण और वननेस में अगर आप देखोगे तो आप और जिस पत्ते की आप बात कर रहे हो वो अलग नहीं है। इट इज ओनली इन दिस कॉन्शियसनेस वेयर यू हैव बिकम एन ओब्लिवियन, कि आपको याद नहीं है कि आप और वो पत्ता या आप और वो मॉस्किटो एक नहीं हो। तो कण कण ही भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके, And that means जब we take human birth, तो is it so कि हम चींटी से all योनिस क्रॉस करके we do come to, या human birth में we become up and down, ऐसा क्या क्लियर है? We always evolve every day. तो I feel हो सकता है अनुराधा जी might differ या anybody else might differ, but definitely we are evolving every day. तो जब हम चींटी का योनि को क्रॉस करके ही ह्यूमन बनते, या एक एक लेवल्स क्रॉस करके ही वी बिकम ह्यूमन, तो एक ह्यूमन बनने के बाद वी नेवर गो बैक टू अ लोअर स्टेज। यस, नो आई टोटली एग्री विद मधु। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारी लर्निंग भी और लर्निंग और एक्सपीरियंस भी रोज रोज बढ़ते रहता है। तो एज पर माई नॉलेज राइट नाउ, जब हम लोग पूरा मतलब एलिमेंट से बनकर, एमीबा से बनकर, प्लांट और सब से क्रॉस होकर तब हमें ह्यूमन बर्थ मिलता है, और वो भी मतलब इट्स क्वाइट एन लाइक यू नो लाइक अ गिफ्ट टू हैव ह्यूमन बॉडी। और दूसरी बात जो मधु ने बोली कि हम लोग फिर उसमें नहीं गिरते, मतलब हमारे मतलब जैसे प्लांट या एनिमल दोबारा से नहीं हो जाते, तो ये बहुत ही एक्सेप्शन होगा कि कोई ह्यूमन फिर से चला जाए, अगर उसने पता नहीं मतलब कुछ इस तरह से ही किया होगा कि उसे फिर से एनिमल बर्थ लेना पड़े, बट अदरवाइज वहां से नीचे नहीं जाते यूजुअली। दिस इज द सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव। ब्रह्म कुमारी से कि हम लोग ये सब बन के नहीं आते, दैट
That's what I was having doubt कि वो लोग बोलते हैं ह्यूमन है, they don't evolve through पूरे stages, ऐसा नहीं होता है, इसलिए I was asking. चलिए, अनुराधा जी, I मैं कुछ want to कंट्रीब्यूट add. करूं? हाँ हाँ प्लीज बोलो। प्लीज मंजूश्री जी पहले आप कीजिए। May I? यस Okay. यस यस। हाँ, थोड़ा फोटो लगा दो प्रोफाइल पे। Oh, okay. I'll do that afterwards. Okay. Hmm. Continuing on the concept of क्या stones में life है नहीं है और पत्तों में नहीं है। अभी पुरानी कथाओं में हमने कहीं पे पढ़ा है कि पेड़ का रूप लेके कहीं किसी को स्थापित कर दिया, फिर उसका उद्धार हुआ। तुलसी माँ का भी ऐसे ही है। और रही बात कि we don't back to the lower state, अगर हम determined है कि we will not go, we will keep our karma on that stage that it will take upside, will not get degraded. हम अगर डिग्रेड हो जाते हैं कार्मिक अकाउंट में, तो डेफिनेटली जो हमारा मैकेनिज्म है सोल सिस्टम का, चक्रास आर होल्डिंग आवर मैकेनिज्म, तो वो अगर डिग्रेड हो गए तो डेफिनेटली जहाँ पे फिट इनटू होएगा देयर ओनली विल गो एंड टेक बर्थ। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ वी आर वंस वी आर ह्यूमन वी मतलब इट इज मतलब डिमार्केशन लाइन आ गया कि नहीं जाते। It is possible, and there are people in this world who are deliberately putting other soul into such danger. So it is possible. हम इसको हम easily नहीं ले सकते कि ऐसा नहीं हो सकता. We have to protect ourselves. So I told you in previous talk that I take one pup, and I know what that pup was in its previous birth. So it was a human. So it's a live example before me. So this statement is wrong that once we are human, it is not possible. It is possible. So we have to protect ourselves कि हमें हमेशा upgradation हो spiritual level में. That's it. That is what I wanted to add. I hope I conveyed something. Thank you. Hello, Phil. So that is a live experience from Manjushri that yeah, one can go from human to thing. But you know, like everybody, I think ये spiritual उसमें कि हमें क्या लगता है अंदर से, क्या ठीक लगता है या हमारे experience में क्या आता है, वो ही हम उसको ठीक समझते हैं। मतलब यही मेरा मतलब अनुभव रहा है। कभी लगता है कि हाँ ये वाली बात ठीक है, लेकिन ये वाली बात में मेरे को थोड़ा सा अगर experience हो तभी मैं मानूंगी। तो ऐसे मुझे तो शी हैज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं? हाँ हाँ प्लीज। रश्मि जी, मतलब इसका कोई मतलब मैंने जितना भी सुना है लोगों से वगैरह से, तो सबसे एप्ट आंसर जो मुझे अभी तक मिला है ना कि अगर आप ध्यान करते हो, आप ध्यान में जाओ, जितना भी आप कर सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा और जितना भी, उसमें ये क्वेश्चन आप पुट अप करो और इसका आंसर आपको वहां मिलेगा। क्योंकि और ये अच्छी बात है कि आप ब्रह्म कुमारी में हैं और मतलब जो भी ध्यान आप करते हो तो उसमें आपको पूरा इसका इन डेप्थ आंसर वहां पे मिल जाएगा। और शायद ऐसा आंसर मिलेगा जो आप शायद किसी को एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन आंसर मिलेगा आपको ध्यान में। इतना मतलब मेरे को पता है। True, very true, true. Sorry, I'm not into Brahma Kumaris. Okay, my father-in-law is there in that ना, तो he keeps on asking me कि अच्छा तू क्या सीखी, ऐसा नहीं होता। अच्छा मैं बताता हूँ ऐसा होता। तो इट्स लाइक ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता। तो आई तो ऑलवेज अग्री कि हाँ आप जो बोल रहे हो ठीक है। तो वो बार बार बोल रहे थे कि ऐसा होता ही नहीं, तुम लोग बार बार एज पर गीता मतलब विषय कि पत्ते पत्ते में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, वॉट एवर इट्स लाइक। और ह्यूमन लाइक 84 लाख योनियों के बाद भी कम टू द लाइक ह्यूमन बर्थ नो। तो he was saying कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, we are always human। हाँ that is कि as per our karmas balance we come to higher realm or lower realm, that depends like no कि अब beggar है या road पे है तो due to their karmas they are suffering है ना। तो human birth में ही they suffer और ऐसा कुछ होता है। I was just wanted to like कि पूछती हूँ क्या इसमें ये है कि अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग थ्योरीज हैं और एक थ्योरी ये भी है कि भगवान फॉर्म में भी है, फॉर्मलेस भी है और वो लाइफ फोर्स भी है। तो
लाइफ फोर्स को अगर आप ध्यान लगाओगे और आपको लगे कि यार भगवान तो लाइफ फोर्स है, तो आपको वो कण कण में भगवान का एक्सपीरियंस अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज कम्प्लीटली एक्सपीरियंशियल, और वो ध्यान में ही होता है। आज मैं एक ध्यान मैं सुबह एक उसमें था ब्रह्मर्षि पत्री जी का, तो वो बता रहे थे कि 9 लेयर्स हैं यूनिवर्स की, 9 लेयर्स हैं, पता नहीं कौन कौन सी, गैलेक्टिकल मिलिस्टिकल, मैं का पता नहीं कौन। अब उसको उन्होंने बताया उन 9 में से 7 तो हमारे चक्रास ही हैं, एक मूलाधार के नीचे, एक सहस्रार के ऊपर, तो 7 जो उन्होंने बताया तो वो ये बता रहे थे कि जो यूनिवर्स की लेयर्स हैं वो एक्चुअली हमारे शरीर से होके जा रही हैं। अगर आप अपने शरीर में चक्रास को आप इनडेप्थ चले जाओगे तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे। तो एंड ये पूरा सब कुछ ध्यान में है। वो तो बोलते हैं भैया ध्यान लगाओ, और कुछ नहीं है, आप ध्यान लगाते जाओ, आपको सारे एक्सपीरियंसेस सब कुछ। बॉडीज ही बहुत तरीके की होती हैं, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉन्शियस बॉडी, पता नहीं कितनी 7 तरीके की बॉडीज बता दी। तो वो बोल रहे हैं कि सब कुछ एक्सपीरियंशियल है, और वो एक्सपीरियंस होता ध्यान में ही है। तो और इट इज गुड कि आप ऐसा पूछ रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि आप मुझे नहीं पता आप ध्यान लगाते हो नहीं लगाते हो, लेकिन आप जब भी ध्यान लगाओगे या लगाते होगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, आपको सारे आंसर्स के एनलाइटनमेंट सब ध्यान में ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू। और जितना हमारा एज होता है उतने मिनट्स का ध्यान लगाना है। लाइक आई एम 40, तो 40 मिनट्स तो मिनिमम है मेरा। आई टोटली एग्री कि मतलब मैंने भी शुरुआत इसी से की थी कि जब हम लोग चक्रास पे करते हैं तो धीरे धीरे हमें उनके देवता हैं, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, हु इज गोइंग टू सपोर्ट, और कौन, अगर हम लोग एंजेलिक हैं तो वो एंजेलिक मतलब एंजल अगर थेरेपी, तो वो एंजल के चेहरे और उनसे बातचीत और उनसे कनेक्शन फिर बनने लगता है। एंड टोटली लाइक अगर मैं सहस्रार चक्र के बारे में बोलूं तो somehow when I was meditating on सहस्रार इसी वीक में, तो सीता देवी मतलब appeared, and then I was like कि सीता देवी and सहस्रार, मतलब मुझे खुद को पता नहीं, but yeah, it really happens that once you go into the depth and quite some time, लेकिन तो I agree with both on this point कि मतलब उसके डेप्थ में और एक बार में कुछ आंसर मिलता है। फिर जब आप पूरा 2 घंटा 3 घंटा या 1 हफ्ता पूरा अगर अनहत पे या सहस्त्रधारा, योर आंसर्स की जो डेप्थ है या अंडरस्टैंडिंग है वो इवॉल्व होती है धीरे धीरे। देख जैसे yesterday what I had, because 2 days I'm doing only on Anhat, so whatever was my experience of Anhat yesterday has evolved today. तो निवेदिता शायद आपको कुछ कहना था। कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हो चक्रास का कि विजन का जो बोल रहे हैं आप, वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मे बी क्योंकि जब हम करते हैं तो वो व्हील है एंड दैट वो फ्लावर का वो जो शेप्स और वो सब दी हुई है, तो उसमें जब आपने बोला फिगर, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे होगा। नहीं तो मुझे यही कहना है कि आपने देखा है ना वो पेटल्स दी हुई है, पेटल्स हैं, फिर हर चक्र की डिफरेंट पेटल्स हैं, लाइक रूट में 4 है, फिर उसमें से ऐसे डीप है ना, हर जगह 10 है, फिर सबका कलर्स अलग है, शेप भी अलग है। आपने वो ऑब्जर्व किया हो अगर, इवन डीपर जब चक्रास को हम लोग जब चक्रा मेडिटेशन करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं, तो हमें वो वाला विजन बोला जाता है जो लोटस का, जिसमें वो पेटल्स और वो कलर शेप, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो वो आप कह रहे हो जो देवी, तो वो मुझे फिर वो कैसे होगा? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एवरी पर्सन एंड एवरी मेडिटेशन इज यूनिक। फॉर मी इन दैट सहस्त्रधारा चक्र के मेडिटेशन में मैंने उनको मतलब उनसे मैं मिली, तो या वो मेरे मेडिटेशन में आए। तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरी डे आई डू सहस्त्रधारा चक्र सीता देवी विल अपीयर, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना। और थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन में कंडीशन भी हो जाता है दिमाग के, फिर हम भी थोड़ा बहुत उसी जो भी हमने टीचर्स ने बताया है या फॉलो कर रहे हैं, वो भी हमारे मतलब उस तरह से ही हमारे विजन्स आने लगती है। मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में। लेकिन जो बोध बोल रहा है कि अगर हम सिर्फ एक मेडिटेशन करें और अपना क्वेश्चन पुट अप करें, तो डेफिनेटली उसी मेडिटेशन में या उसके आगे पीछे उसी दिन में आपको आंसर मिलता है। तो वो बोध का मैं सपोर्ट करती हूँ।
हाँ, वो जो बोध बोल रहे हैं वो भी है, क्योंकि हम जनरली क्या होता है कि अगर आप इनर जर्नी पे आप जाओ, अगर स्पिरिचुअलिटी में जाओ, तो एवरी इंडिविजुअल का स्पिरिचुअलिटी जो हम बाहर जितना भी सीखें वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो हम सीख रहे हैं, वो सब कुछ हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट जब तक हर एक का इनर जर्नी वो है जो वो खुद सीख रहा है, क्योंकि हर एक का अपना है। आप बाहर से सब कुछ पढ़ के आएंगे और हर कोई अलग अलग वे में सिखाता है। Like me myself into so many things, so I have learned so many things like angels का, फिर tarot, reiki, और वैसे भी I did Dr. Newton's का workshop I did in like 2012, जो आप अनुराधा जी आप जानते ही हैं उनको, तो जो पास्ट लाइफ वाला, पास्ट लाइफ रेग्रेशन 2 days का एंड ऑल, तो वो बोलते हैं, जो बोध ने बोला कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग मेडिटेशन, तो वो वहां पर मुझे बोला था। डॉक्टर न्यूटन भी बोलते हैं कि आपको अपने एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए, बट मैंने जो जितना सीखा, जितना मैं अभी इनर जर्नी पे, जो मेरा लग रहा है कि वो हर एक का अपना अलग जर्नी है। जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स हर एक के इंडिविजुअल है। वो जो आप बोध ने बोला है वो ये है, क्योंकि सबका अपना सोचने का है, और आप आंसर्स तो सबसे सुन के आओगे, बट यू विल फॉलो व्हाट योर हार्ट विल से, है ना। मानोगे तो आप ना, जो आपको फील होगा, जो आपको लगेगा, वही मानेंगे आप। तो इनर जर्नी, और तभी आप जब सेटिस्फाई हो पाओगे उससे, वही है आपका। तो इनर जर्नी इज वेरी डिफरेंट, मतलब उसको बाहर हम जितना भी कर लें, बुक्स में भी पढ़ लें, लेकिन उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक एवरीवन इज नॉट स्पिरिचुअल। वी कांट से कि स्पिरिचुअलिटी इज इनटू ऑल, जो हमारी जितनी भी हीलिंग्स के पाथ हैं या जितनी भी चीजें हैं, उसमें आई हैव सीन कि ऑल ऑफ देम आर नॉट स्पिरिचुअल। उनको हम स्पिरिचुअल लोग नहीं बोल सकते, मतलब स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट। Yeah, we cannot say everybody is spiritual, but we are actually, जैसे हम छोटा बच्चा स्लेट पर लिख रहा है, then he wipes off before writing a new word on it. तो actually जो originality है उसको अचीव करने से पहले we all beings are actually cleaning our states, our slates, whatever you want to say. So we should not be judgmental about anybody, and we should not be judgmental even about our own meditative states also. We should walk with free open mind. One day the experience is different and we should not stuck with it also. Next day experience will evolve, another day more intense. So we all are spiritual, hidden or open. We are ultimately, our goal is one only. So we in the pathway, meanwhile, on our journey, we are together making up something, stirring up something here when we are in a conversation like this, because we are exchanging energies, not only for us, but those who are watching or listening us onwards. Any experience you like to share about such meditation that you had some inner? Yeah, of course. I also mentioned one personality in my surroundings that triggers my behavior. So I asked one master, and they told me, two masters, they told me just concentrate on the face and sit in meditation, and you will get your answer. Because question is already inside you. Something is there which is triggering me. So they said, you just concentrate on the face and sit in meditation. Don't ask, don't speak, don't utter anything in that meditative state. You have just got it in your mind, got it in your system, and yourself is having that intuition, what is behind it. तो फिर आपको कुछ आंसर मिला, and then that person yeah, yes, I got it. So it's not good to put everything before everybody. Yeah, so I got the answer. I don't want to know, but this I want to give hint. That person was a Negro, and his karmas appeared before me. I got the visions,
So, but I also cannot convey to him what you are. So it's in now I am, matlab, I'm free from that state कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों है. So that's good. चलिए फिर. But So, now my learn about status a is lot now I today about want to karma. move deep and deep into meditation. I want to move ahead in spirituality. Yeah. I want to move up. That can only be happened by God grace only. And everybody wants that blessing. Everybody. And ultimately will everybody get, whether in this birth or next birth, or I don't know what God has examination for Thank you, everybody, Manjushri. for all of us. Thank you. Thank you. Yeah. So anything other than this, किसी के दिमाग में इस week और especially मधु join की है, Nivedita join की है, anything that you want to share this week about something that came up for you, something that you like to bring to the table? Just what Rasmi said कि कौन पहले आया, मतलब आप चीटी बनते हो या नहीं. Just मेरा एक इसमें attachment ये है कि in spirituality we are evolving every day, right? And what we are learning in spirituality is detachment from all worldly things, all material things. So we need not get attached to this feeling also कि क्या हो रहा है. क्योंकि आज ही मैंने एक ओशो का मैसेज पढ़ा कि जो जिंदा है वो स्वर्ग गया नहीं, और जो मर गया वो स्वर्ग से जाके आपको बताता नहीं है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, राइट? तो बोलने का ये मतलब है कि आप यहाँ रहते हुए आपका इस लाइफ में क्या पर्पस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वेदर आप नेक्स्ट जन्म में अच्छे इंसान बनोगे नहीं बनोगे, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कर्मा इन दिस बर्थ और द प्रीवियस बर्थ्स का. अगर आपने कर्मा इस लाइफ में सेटल नहीं किया है तो दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ कि हम प्रीवियस कर्मास को सेटल करें. वी शुड फोकस ऑन सेटलिंग आवर कर्मास एंड नॉट ऑन कि नेक्स्ट क्या होगा. हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि either we are lingering in the past or we are bothered about the future. We never live in this moment. Now moment में हम कभी नहीं रह पाते हैं. तो let us concentrate on the now moment. Leave whether next birth में हम human बनेंगे कि चींटी बनेंगे, should not bother us. This is what I have learned till date कि मुझे डिटैच होना है हर एक उस चीज से जो मुझे पीछे ले जाएगी. तो अगर स्पिरिचुअलिटी का चादर ओढ़ के हम फिर अटैच हो रहे कोई और चीज से. चक्रा से शुरू किया और हम लोग कर्म और क्या क्या, तो आज है ना टॉपिक की काफी इंटरेस्टिंग हो गया है. तो आप आग लगा देते हो, हर दिन होली कर देते हो, दिवाली खुली दिवाली चल जाती है आपके हस्बैंड. हाँ, लेकिन मतलब सब क्या, सॉरी मधु, प्लीज कंटिन्यू. या Dadaji, I'm trying to log in from my laptop, but I'm unable to. Let me try once more. Yeah, sure. तो I totally. जब तक, हाँ प्लीज, जब तक उनका लॉगिन कर रहे हैं मैं कुछ शेयर करूं जल्दी से. Yeah. सो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है मधु जी को. उन्होंने एक चीज सिखाई जो मैंने इस बार अप्लाई की. अपने बॉटल पे मैंने लिखा है आई लव यू, और दूसरी तरफ मैंने यमुना के बारे में लिखा है कि यमुना साफ है, लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट. और मेरे पास एक ये छोटी सी कटोरी है, इसको मैंने यज्ञ का कुछ बना रखा है. उसमें लिखा है मैं द्रव्य यज्ञ कर रहा हूँ. यज्ञ 12 टाइप के होते हैं. सो बेसिकली मधु ने ये बताया था कि कोई भी बॉटल या जग में पानी भरो तो उसको ऐसे करके इमेजिन करो कि जादुई धूल उसमें जा रही है, और फिर उसको अभिमंत्रित करके मतलब थोड़ी सी हीलिंग वगैरह उसके साथ कर सकते हो. तो वो मैंने प्रैक्टिस किया. और मतलब और दूसरी चीज जो मैंने इस हफ्ते की, वो मैंने ये पिरामिड्स बनाए छोटे छोटे. और ये ब्रह्मश्री पत्री जी हैं जिन्होंने बताया, उनके कोई मास्टर है, उन्होंने बताया कि पिरामिड से जो आपकी एनलाइटमेंट और वो पावर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं. तो इतने उस समय उनका सेशन चल रहा था, तभी मैंने 2 पिरामिड्स तो तभी बना लिए थे. आई एम एन आर्किटेक्ट, सो मुझे थोड़ा बनाने का शौक भी है. और मैंने एक लैपटॉप पे रखा हुआ है और एक मेरा एक खाने का डिब्बा है उसके ऊपर रखा हुआ है. और अभी और मैं पिरामिड्स बनाऊंगा. ये पानी को जो ब्लेस बात मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड डेफिनेटली जो पानी को एक बार आप ब्लेस कर दो ना, उसका स्वाद ही बदल जाता है.
मतलब वो एक किस्म से है या कुछ, मतलब उसका स्वाद बदल जाता है, ये कहने का मतलब, ये तो खुद मैंने और एक्सपीरियंस किया है। उसमें एक चीज और है जो इन्होंने ये बताया ना कि इस पे लिख दो, तो एवरी, अब जैसे ये ग्लास पर मैंने लिखा हुआ है मैं अमृत हूँ, तो एवरी टाइम आई ड्रिंक इट, मैं एक बार पढ़ लेगा ना तो मुझे कॉन्शियसली हो जाता है कि अच्छा मैं अमृत पी रहा हूँ। सो दैट इज द थिंग, वो चीज। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि सेम चीज जब लव और कुश पैदा हुए थे तब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने बोला था कि मैं एक जल है वो अभिमंत्रित करके दे रहा हूँ, जो भी कोई लेडी थी उनके पास आई थी ये उनको पिला दो। तो ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली पहले भी कई शास्त्रों में मेंशन है, जब मधु ने उस दिन क्रिएट की तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये पावर है, धीरे धीरे करके जनरेट करनी होगी। Yes. थैंक यू अनुराधा जी। Yeah, thank you, Madhu. Madhu, you want to add Thank something to it? Yeah. Yes, नहीं बस मुझे यही बोलना था कि रश्मि हमें अटैच नहीं होना है कोई भी चीज से, कि जो भी हो रहा है लेट इट बी, वी शुड एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज, जैसा है वैसे को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो अच्छा और बुरा, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, राइट? इफ यू सी फ्रॉम द अदर साइड इट इज हेड, बट फ्रॉम माय साइड इट इज टेल। तो अच्छा और बुरा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है ही नहीं, इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। तो लेट अस लिव इन द नाउ मोमेंट एंड फॉरगेट कि नेक्स्ट बर्थ में हम ह्यूमन बनेंगे कि चींटी बनेंगे, शुड नॉट बॉदर अस। दिस इज माय परसेप्शन कि आई हैव concentrated my life, this is my life I am talking about, कि I concentrate on karma, कि I do not do anything which I feel if somebody else does to me I will not like. अगर कोई मेरे साथ कुछ ऐसा बिहेवियर करे जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो वो बिहेवियर मैं सामने वाले के साथ नहीं करती हूँ, एंड माय लाइफ इज सॉर्टेड विद दिस वन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। बहुत आई थिंक इफ great point, Madhu. Great point. That we don't Thank you, do. thank you. Yeah, I really, matlab, and welcome Swati. And Swati, thanks that Madhu came to this meeting, and we are hearing so many wonderful things from both and Madhu this week. hey, अनुराधा जी, इनकी ना 12 to 1:30 PM रोज एक कॉल होती है मैजिक की, जादू की, आप उसमें आइए, बहुत धांसू। Radha ji is a great master. There are around 200 people who attend that call. 200, मतलब amazing. Everybody is a master. Everybody is a master. And Everybody I is a feel master. जो हम लोग बोलते हैं ना कि गॉड है, वो एक दूसरे में हम लोग कुछ ना कुछ हम लोगों ने सीखा होता है, समझा होता है, और हमारी एक्सपीरियंसेस हमें एक रास्ते पे ले जा रही है, और जब हम एक्सचेंज करते हैं अपनी लर्निंग तो उससे हमारे मतलब काफी चीजें हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं। और मैं उस मधु की जो उन्होंने एक अंडरलाइन करके पॉइंट बोला कि हम उस पर करें कि भाई मैं वो ना करूं जिससे जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे मैं मतलब सह ना पाऊं उस चीज को। तो कभी मतलब तो दैट पॉइंट मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड वेलकम स्वाति, वेलकम। आपके बगैर ये महफिल अधूरी थी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो हेलो हेलो। तो आज काफी वहाँ चक्रों से शुरू होके, रेकी से शुरू होके, और काफी चीजें हम लोग ने कवर कर ली हैं, और बोध का वो जो मच्छर वाला पॉइंट था वो भी काफी डिस्कस किया है। तो एनीथिंग टॉप ऑफ योर माइंड जो आपको शेयर करना है, या एनीबडी एल्स लाइक रश्मि आल्सो और समबडी इफ समथिंग दे हैव टॉप ऑफ देयर माइंड। मधु तो आज वो स्वाति तो आज बहुत थकी हुई लग रही है। बट वन थिंग आई वांट टू ऐड ऑन दिस इज कि जो हम लोग बोलते हैं कि जो इवॉल्व हो रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इवॉल्व जब हम लोग बोलते हैं कि इवॉल्व हो रहे हैं तो एक्सपीरियंस करना, मतलब एक्सपीरियंस करते रहना और एक्शन करते रहना उसका एक पार्ट है। मतलब लर्निंग एक पार्ट है, दूसरों को हानि न पहुंचाना एक पार्ट है, बट ऑलवेज बी इन एक्शन एंड ऑलवेज वो भी हमारा एक कर्म है कि मतलब हम जब यहाँ पर ह्यूमन उसमें आए हैं तो एवरीथिंग, वेदर वी नो दैट वी विल सक्सीड और नॉट, वेदर दिस विल हैपन और नॉट, कर्म करते रहना है, नए प्रोजेक्ट्स करते रहना है, नई चीजें एक्सपीरियंस करते रहना, वो भी हमारा एक काम है या ड्यूटी है, ऐसे मेरे को लगता है। So something which comes to me and I want to say yes to it and I want to create time for it and I want to experience it, ऐसे मैंने अपने आप को ढाला हुआ है कई सालों से।
तो लाइक चैलेंज, जो भी चैलेंजेस सामने आते हैं, ऐसे लगता है कि यार मैं इसके लिए टाइम कैसे करूंगी, या ये मेरे आउट ऑफ लिमिट है, या मैं मतलब कैसे ट्रैवल करूंगी, यू नो एवरी टाइम इफ आई वांट टू डू कि हाँ ये मेरे मतलब मुझे ये करना चाहिए, तो आई वांट टू पुश माई सेल्फ। ये भी एक चीज है जो मुझे लगता है कि गॉड वांट्स टू एक्सपीरियंस through us. So he is also learning. If there is a he or she, then God is also learning from our experiences. तो देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, जो मधु ने और एक और चीज अंडरलाइन की, एक एक्सपीरियंस है वो, मैं उसको ऐसे समझती हूँ। एब्सोल्युटली अनुराधा जी, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, और हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। इफ वी आर रेडी टू लर्न, तो वो जो एक्सपीरियंस आया, हो सकता है वो एक्सपीरियंस बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंस हो, बट इफ वी लर्न द लेसन दैट इट हैज कम टू टीच अस, देन वी इवॉल्व. If we don't learn the lesson, so it comes again as a learning. Repeat. That means that experience keeps on coming to us, and till the time we learn, we keep on taking births. तो मोक्षा चाहिए, तो जितनी जल्दी हम लर्न कर लेंगे, we'll get that मोक्षा. और मुझे बस एक और चीज इसमें ऐड करनी है कि जो हम बोलते हैं लर्निंग, इसका मतलब जो हमने पहली जो एक्शन रिएक्शन का जो सिस्टम बनाया था, उससे हमारी लर्निंग नहीं हुई। तो ये भी है कि अगर मैंने उसको ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया और मेरी समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम दैट सिचुएशन कम्स, देन आई हैव टू मेक थिंक कि अरे ये पहले भी हुआ है, तो हाउ कैन आई रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट मैनर, दैट इट you know that it whatever, like maybe it expands ki my experience, it expands the group experience. तो ये भी चीज होती है, कई बार ऐसी होती है कि जैसे कल अगर मैं गुस्सा हो गई किसी चीज पे, मैं बोल नहीं पाई कहीं पर, तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि नहीं वहां पर बोलना था, तो टुडे आई टेक अनदर स्टेप। ये भी एक एक्सपीरियंस या लर्निंग और इवॉल्विंग का एक तरीका मुझे लगता है, कि जहां पर मैं कल बोल नहीं पाई या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो उसको मैं आज रेक्टिफाई करूं, या वो सिचुएशन दोबारा आए तो मैं उसको दूसरी तरह से हैंडल करूं। तो दैट इज आल्सो लाइक न्यू एक्सपीरियंसिंग एंड क्रिएटिंग न्यू वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस। तो ये मैं इसमें आगे इसमें जोड़ना चाहती हूँ। मैं कुछ शेयर करूं? हाँ प्लीज, बोला मत करो, तुम शेयर कर दिया करो। I will after you. ओके, तो 2-3 दिन पहले एक एक्सरसाइज थी जादू वाली क्लास की कि किसी को आपको ग्रेटिट्यूड देना है, तो मैंने विजुअलाइज किया आंख बंद करके अपनी मम्मी को, और मैं कुछ कहने वाला था उनको, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर मैं उसके रीजन ढूंढने लग गया कि उसका रीजन क्या है, कि मैं उनसे क्यों खुश हूँ, उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। और मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा था क्या रीजन है, बस मैं खुश था और मैं इंटरनली भी खुश हो गया। उसके बाद मैंने अपने पापा को विजुअलाइज किया कि वो मेरे सामने बैठे, और मैंने उनको ही बोला कि मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड सडनली आई कुड फील द एनर्जी लेवल गोइंग सो हाई कि मैं रुक ही नहीं पाया, और मैंने दोनों को मैसेज कर दिया कि मम्मी और पापा मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ये किया, फिर पापा का तो थोड़ी देर मैसेज आ गया कि कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ अस, ऐसा करके। और फिर कल मैंने पापा को फोन किया। मेरी एक्चुअली मम्मी से ना 1.5 साल से बात नहीं हो रही है, मम्मी किसी बात से दुखी है मुझसे। तो मैंने उनको फोन किया पापा को, मैंने कहा मम्मी से बात करनी है। बोले अच्छा। फिर वो मम्मी के पास गए, मम्मी से कहते हैं कि बोध का फोन है, उसे तुमसे बात करनी है। तो मम्मी कहती है क्या बात करनी है? तो पापा बोले मुझे क्या पता, उसको पता होगी। फिर मम्मी ने बोला कि उसको बोल दो मैं सुनूंगी, मैं बोलूंगी नहीं। तो पापा ने बोला ठीक है। तो मैंने उनको मम्मी को बोला आई एम सॉरी, मैंने आपको ऐसा बोल दिया था कि मैं आपसे बहुत दुखी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, ऐसे करके। तो फिर मैंने हेलो हेलो बोला, तो उन्होंने कुछ मुझे बोला नहीं। तो मैं कहा ठीक है। फिर अभी एक हिना मैडम है जो भगवत गीता की क्लास ले रही है आजकल, तो मैंने उनको फोन किया था इस कॉल से पहले, जूम मीटिंग से पहले, कि मैडम मेरे को ना मम्मी के साथ मतलब वननेस क्रिएट करनी है, कैसे करूं? तो बोलिए आप ना कंटेम्पलेट करो और अपने थर्ड आई पे फोकस करो, और थर्ड आई से आप उनको मैसेज भेजो जो भी आप कहना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके वो अभी बंजर जमीन है उस पे आपको खेती करनी है, पानी भगवान ईश्वर डालेंगे, और धीरे धीरे करके वो कनेक्शन आपका बनेगा।
तो ये है। और एक और चीज उन्होंने बोली कि पेरेंट्स आर लिविंग गॉड्स, एंड सेकंड थिंग शी सेड इज कि आपको ना बच्चा बनना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चा बनना पड़ेगा उनके सामने, और तब वो कनेक्शन आपका उनके साथ बनेगा। तो मैंने कहा वंडरफुल बहुत, और ये शेयरिंग बहुत अच्छी लगी, एक तो पानी वाली और दूसरा ये आज्ञा चक्र से किसी से बात करने वाली। मैं बात तो करती हूँ बट ये जो चक्र से कनेक्शन वाली बात आपकी जो है वो अच्छी लगी मुझे। हाँ निवेदिता आप बोलो बोलो, अभय मुद्रा में निवेदिता। जो ये बोध ने बोला ना, तो वी डू हीलिंग थ्रू, यही तो करते हैं डिस्टेंस हीलिंग में। हम थर्ड आई से ही हीलिंग करते हैं, और हम डिस्टेंस में कैसे कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। एंड वी हैव इन रेकी वी हैव सिंबल्स, अदरवाइज एंजल में भी वैसे भी वी यूज थर्ड आई। आपका अगर एक्टिव होता है तो थर्ड आई चक्रा से ही कनेक्ट करते हैं। एंड इवन वी डू रेकी में वी डू रिलेशनशिप हीलिंग्स भी तो करते हैं हम लोग। अगर और भी कोई रेकी में, बाकी प्राणिक में भी करते होंगे वो लोग, तो दो लोगों से कनेक्ट करके थर्ड आई से ही करते हैं। जिन दो लोगों को मिलवाना है या रिलेशंस हील करने हैं, दिस ऑल इज देयर इन रेकी। जो बहुत बोल रहे हैं ना वो थर्ड आई से ही, मतलब व्हाट आई डू, मैंने रेकी जब से सीखा है, जो पास में आके हाथ रखने वाला वो मैंने कभी किया ही नहीं। व्हेन पर्सन वाज विद मी आल्सो इन फ्रंट ऑफ मी, तब भी मैं थर्ड आई से ही करती थी। तो एक्चुअली इसमें जो बेस्ट चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने ये बोला ना कि मैं खुश हूँ, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। मतलब अगर मैं मेरी मम्मी को ऐसा भी बोल सकता है किसी को भी, यार मैं तुमसे ना बहुत दुखी हूँ, तो वो दुख मेरा बोलने से ही वो दुख क्रिएट हो रहा है, और मेरे खुश बोलने से ही वो क्रिएट हो रहा है। उसके उसी दिन 2-3 लोगों का मेरे पास फोन आया और मैंने आपको उसको एक बोला। एक्सरसाइज देती हूँ मैं, एक कि आप थर्ड आई का जो मदर के लिए, अगर आप इतना कुछ कर रहे हो ऑलरेडी, बिकॉज आई हैव सीन, जो भी आपकी इतने दिनों से बातें सुन रही हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू टेल अबाउट योरसेल्फ, सो मेनी आई थिंक प्रॉब्लम्स एंड गोइंग थ्रू सो मच। आप एक काम करो, जो भी चाहते हो ना, आप मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेशन के लिए बोल ही रहे हो, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ट्राई, बस आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो जो आप चाहते हो कि ये हो रहा है। मैं अपनी, मेरी माय मदर इज टॉकिंग टू मी, एंड आपकी वाइफ से भी जो बात, क्योंकि मैंने लास्ट 2 टाइम से देखा है, और आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी चीजें आप ना सॉल्व करना चाहते हो, उसको मेडिटेशन में विजुअलाइज करना शुरू करो। फॉर 21 days you do and see कि it will happen. If it will not happen in 21 days, do it for 3 months रेगुलरली, एंड उस बहुत अच्छा सब कुछ होते हुए देखिए अपने सामने, जो भी आप चाहते हो, इट विल हैपन डेफिनेटली। हम हीलिंग कैसे करते हैं पता भी, मैं कोविड की हीलिंग्स आई डिड फॉर 7 days। एक लंग्स तो पूरा क्रॉनिक था, 6 days में उनका 25/25 था। 6 days में उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया था। शी वॉज इन आगरा, मैं उनको जानती नहीं थी। तो हम थर्ड आई से ही करते हैं। लेकिन ठीक है, वो डेस्टिनी, जो चीज मैं आपको बोल रही थी ना आज की, कुछ चीजों के लिए मैं ये नंबर्स और इनमें आई, क्योंकि हम लोगों के पास जब शायद पावर्स जब देते हैं तो हमें ये भी रियलाइज होता है कि ये हीलिंग होगी नहीं, या ये हील नहीं होगा, वो इंट्यूशन पावर आ जाती है कहीं से। तो मेरे साथ अभी लास्ट वीक, लास्ट 10 days में यही हुआ था कि एक ही वाज 1990 बॉर्न था, एंड लास्ट ईयर मैरिड, वाइफ वाज प्रेग्नेंट, एंड कोविड की हीलिंग मेरे पास थी, एंड ही वाज ऑन वेंटिलेटर, आ गया हीलिंग करते करते। बट 7th डे मैंने हीलिंग किया, पर पता नहीं आई गॉट इल, मुझे समहाउ गॉड इशारा कर रहे थे, मैंने छोड़ दिया उसके हीलिंग, कि वो लोग रिक्वेस्ट करते रहे, एंड ही एक्सपायर्ड। 8th डे मैंने हीलिंग नहीं किया, 9th डे मतलब ही वाज नॉट देयर। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के भी हाथ में नहीं होती, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते, वी आर नॉट गॉड, हम कर भी नहीं रहे होते एक्चुअली, तो वो यूनिवर्स करता है। तो ऐसे होता है, बट आप फिर भी आप कर लोगे, मैनिफेस्ट करो आप चीजों को, तो यू कैन डू। जो चीजें जितनी होनी होंगी विल वर्क आउट, है ना। आप स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड डूइंग, करोगे नहीं तो होगा कैसे ना, तो आप वो करना शुरू कर दो। Thank you, Thank you, thank you, Nivedita. Rashmi. I will do it. Thank you, Rashmi, for One joining. more thing I would like to add. Thank you, Nivedita ji, for the learning. कल हो ना हो, प्लीज आज मैटर को सॉल्व कर लीजिए, एटलीस्ट विद योर मदर आप सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज नो वन नोज कि कल आएगा कि नहीं आएगा। डोंट वेट,
आप एक बार और उनको फोन कर लीजिए. आई एम वेरी श्योर कि शी विल टॉक टू यू. ठीक है, मैं एक्चुअली कॉल तो उनको रोज कर रहा हूँ, मम्मी ने नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है, तो अभी आप दूसरे पापा नंबर के से कर. पापा दूसरे, हाँ चलो हाँ ठीक है मैं करूँगा. अब पापा खुद इतना डरते हैं मम्मी से कि कल तो चले गए, नहीं तो जाते नहीं है. तो नहीं नहीं, मैं हो दूसरे नंबर जाएगा. से. आप ना आप उसको मेडिटेशन में करने, और आप इतना कर रहे हो, शायद जल्दी हो जाएगा. आप करो करो, हो जाएगा. शायद ठीक आप है, इतनी सारी, देखो इतनी एनर्जीज और इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी मेडिटेशन कर रहे हो, तो गॉड कहीं ना कहीं आपके साथ तो है, यूनिवर्स इट विल वर्क. हो जाएगा. आप सोचो मत कि नहीं होगा, बस आप ये करते जाओ. हो गया. मेरी बात हो रही है, मम्मी करिए. आप नहीं भी करोगे ना, आप ट्राई कि आप विजुअलाइज करना पक्का करो, और आप सोचते रहो कि मैं बात कर रहा हूँ. मेरी आप एफर्मेशन में डाल दो, जैसे उनको आपने बहुत सारी एफर्मेशन सीखी है, तो उसमें डाल दो कि रोज आप सुबह और रात को एफर्मेशन करना शुरू कर दो. माय मदर इज टॉकिंग टू मी, और मैं मतलब उनके साथ हूँ. इस तरह से कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशन डाल दीजिए जो आप चाहते हो जाएगा. डेफिनेटली हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल मैं करता हूँ, कॉज करता हूँ. बोध को काफी आज मिल गया है, एंड एवरी टाइम ही ब्रिंग्स अप सम टॉपिक, एंड हमको और भी अपनी एक चीज लर्निंग. के लिए मैं अनुराधा जी को थैंक यू करती हूँ. एक्चुअली मैंने ये ग्रुप आपका जो स्पिरिचुअल स्पाइरल वाला था, एक बार छोड़ भी दिया था. तो मुझे दीदी ने बोला कि तुमने क्यों छोड़ दिया, फिर मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया. एंड मैं किसी को जानती नहीं थी, मैंने दीदी को बोला. बट आपके कुछ वीडियोस से मैं जैसे बोध, स्वाति जी, मंजुश्री जी और इन सबको जानने लगी लास्ट 2-3 वीडियो से. तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं सबको जानती हूँ. तो वो ग्रुप में वो एनर्जी फील होने लगी कि हाँ सबको जानते हैं. और मुझे भी मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हर दिन कोई ना कोई नए आ रहे हैं, और एक चीज भी जब शेयर करते हैं तो उससे एक रिपल इफेक्ट, मतलब मुझे तो इतनी, मतलब जैसे स्वाति बोलती है उसको रेस्ट फील होता है, मुझे एनर्जी फील होती है. जिस दिन सैटरडे को ये सेशन होता है उस दिन मैं 12 बजे तक भी मतलब काम कर सकती हूँ, इतनी मतलब एनर्जी आती है. और आज जैसे मधु आई है, तो मधु हैज सम काइंड ऑफ ग्रेविटी इन हर, वट एवर शी इज स्पीकिंग, और इन जो भी हर किसी का एक चीज होता है जो वो लाते हैं. एंड बोथ हैज एवरी टाइम क्वेश्चंस, इतने अच्छे से ट्रांसपेरेंट शेयरिंग होती है कि मैं भी हैरान रहती हूँ कि कैसे मतलब ये ट्रांसपेरेंट शेयरिंग इतना कर लेते हैं. तो थैंक यू निवेदिता फॉर ज्वाइनिंग. So everybody pat on yourself. We are all source of energies. We are all light beings. So very nice, and very happy to know everybody here. Very great feeling comes. Yeah. Yeah. So थैंक यू. continuing further, बोध जी का नाम बोध जो है ना, इस जन्म में सब कुछ बोध होने वाला है उनको. और फिर उनकी जो जर्नी है वो फेसाइल होने वाली है. दैट इज ट्रू, वंडरफुली ट्रू. और एक शब्द अभी पार्टिसिपेंट ने बोला, मैं अभी वो न्यू फेस है, अभी मैं अभी नाम नहीं पढ़ा मैंने उनका, मोक्ष. तो उस वक्त मेरे माइंड में एक फ्लैश हुआ, मेरे को लग रहा है कि मुझे वो शेयर करना चाहिए. जैसे एक मूर्ति बनाने वाला एक पूरा स्टोन को कार्व आउट करके एक शेप दे देता है, तो मोक्ष उसमें तो चेतना है ही नहीं, पत्थर में नहीं है, वुड में नहीं है, जो क्राफ्टिंग जिसकी हुई है. लेकिन हमारे में चेतना है, ह्यूमन बीइंग्स में. तो मोक्ष वो है कि लर्निंग हम कितनी चीजों की कर ली हमने, कितना ऐसे करने से ऐसा होगा, अफर्मेशन से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा. बट वो जो मोक्ष है ना, जो हम फॉर्म हुए हैं, उसको वापस उसको कार्व आउट होने से जो पहले स्टेट था उस स्टेट में जाना है. तो अब वो हमारा अंदर से ही ड्राइविंग फोर्स है. मूर्तिकार ने तो मूर्ति बनाई, आउटसाइडर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. और अब वो, लेकिन स्टोन या वुड में वो चेतना नहीं है कि वापस उसी स्टेट में चला जाए. लेकिन जो हम सीख रहे हैं, मेडिटेशन एंड ऑल, दीज आर ऑल टूल्स कि वो अपनी चेतना से, अपने ध्यान से हमें फिर वापस बिफोर कार्विंग की जो स्टेट थी वो अचीव करनी है. वो मोक्ष है. This is what comes in my mind immediately when this word I heard in this talk. Thank you so much for listening, for sharing. Thank you.
थैंक यू मंजुश्री फॉर शेयरिंग मोक्ष का जो आपका पर्सनल कॉन्सेप्ट है. स्वाति, कैन यू से एटलीस्ट हेलो? आप कुछ बोलोगे? आज शेर को क्या हो गया? मौन शेर व्रत थका हुआ क्या ही आज. आज वो मौन व्रत में तो नहीं है. हाँ, मौन व्रत में ही है आज वो. And thank you, Swati, for joining me in this wonderful group. Really liking it. Thank you so much. स्वाति कुछ तो बोलो. मैं आज बोलूंगी तो ठीक है, मैं मधु के लिए बोलती हूँ. हाँ, आज मैं जो भी हूँ, मैं मधु के कारण हूँ. थोड़ा इलैबोरेट करो. मतलब she is नया my- बोलो. This she is is not my done. strength. चुप रह. She is my strength, my best friend. मतलब मेरे और मधु के बीच में इतना ट्रांसपेरेंसी है कि आई डोंट थिंक सो कि हम दोनों के बीच कोई भी एक छोटा सा भी सीक्रेट है. मतलब एवरीथिंग, वो कितना भी बैड हो, कितना भी गुड हो, मैं लाइफ में किसी और से बात करूँ नहीं करूँ रोज, मैं मधु से और मेरा उससे कन्वर्सेशन रोज होता है. एंड लॉन्ग कन्वर्सेशन भी होता है. कुछ बात करने का नहीं भी होता था, और बोल वी डू. और एक दिन मैं बोली, अगर अपने दोनों में से एक भी पहला मर गया तो दूसरा क्या करेगा? वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया कि दूसरा कैसे रहेगा. मतलब शी इज एन एंजल इन माय लाइफ. अपने नाम में भी एंजेलिक रखा हुआ है, तो मतलब लुक भी वो दिख भी वैसे रही है, पर उनमें मतलब मुझे कुछ लग रहा है कि वो उनके में कुछ अट्रैक्शन पावर है. मेरे को ऐसे लग रहा है तब से. अट्रैक्शन मतलब दूसरा वर्ड नहीं आ रहा मेरे को. एक ग्रेविटी आ रही है. पर मुझे लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है, पता नहीं, जब से देख रही हूँ ऐसा लग रहा है पहली बार नहीं देख रही हूँ. हाँ, कहाँ मुझे देखा है पता नहीं. या तो मैं YouTube के किसी वीडियो में, या मतलब जब वो आई ना तो मुझे लगा नहीं कि शी इज लाइक, आई डोंट नो हर. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको देखा हुआ है कहीं पे, पता नहीं कहाँ देखा. इसके लिए Again, ना I would आपको like to add in this. इनका एक मैजिकल क्लास है, मैजिक 5 12 to 1:30 PM. देखो, आप वो ऐसा ज्वाइन करो, है, उसमें आपको देखो, ऐसा है. कहाँ रियल होता है मैजिक. क्लास, कहाँ पर होती है? इसकी डिटेल्स है ना, Zoom. आप ग्रुप में डालो. इसकी डिटेल्स आप ग्रुप में डालो, और ये भी डालो कि नए लोग आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं 3 हफ्ते से तो आपसे के मुंह से सुन रही हूँ मैजिक. तो नए लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, ये सब बता दो उसमें. स्वाति जी तो प्राणिक हीलिंग करती हैं ना, स्वाति जी, और आप भी करते हैं क्या मधु? नहीं. मैं Swati is a pranic healer and I believe in self healing. So we don't advocate healing others, but then we still are best friends. And जैसे स्वाति ने कहा कि I am her angel, she is my angel. So whatever I am today, I think I am because of her. We have been the best friends since we were in college. Until date, we are the best of friends, and hopefully till we die this birth, we are the best friends. So it is not about being the best friends. We have many best friends, but it is being with someone when you actually need that person. And we have been that person for each other. So that is what matters. कि अगर आपको जब चाहिए तब, I don't believe in कि अगर आप long talks करते रहो, every day you need to talk to be best friends. But I believe कि अगर आपको मेरी जरूरत है आधी रात को भी, then I am available. And this is what we do for each other. And I think for anybody in my life, I follow the same principle. वंडरफुल मधु, वंडरफुल मधु. अभी और कुछ और भी स्वाति, बोल सकते हैं। आपके दोनों की फ्रेंडशिप देख के रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि मतलब ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे होना भी मतलब काफी कर्म, I am अच्छे कर्म blessed. किए होंगे. I am blessed with good friends. I am blessed with good friends. हाँ, and we are blessed This with is- you that you are my, No, that I I am got also to blessed know. to have you ना. बताए वहाँ थे 10 दिन तो कुछ नहीं जानते थे, हम इसके दानी के कितना कुछ जाना है, आपने मुझे कितने नए लोगों से मिलाया. It's so nice. जैसे आप लोगों ने कहा कि we know each other, तो this is like a soul group. क्योंकि because we actually know each other since ages, so we have met here again. It is not by chance that we are talking over Zoom. It is definitely a soul connection. वो past का बहुत लंबा connection है जो आज आके we are meeting here and hope to have a long one. Yes, Thank you. ये बिल्कुल मैं I agree would कर रही say हूँ इस one बात thing for से. Madhu. हाँ, बोलो. Madhu, आज से I think 10-12 years back, Madhu, yeah, 15 years back,
मधु हैव अ सिवियर लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, डॉक्टर ने तो से जवाब दे दिया था कि विद इन 8 years. अगर ऑपरेट करो, 8 अदरवाइज 8 years. हाँ, एंड that was the reason for her to come in meditation. And उसने continuous meditation करके उसका liver, she didn't go for an operation and उसका liver cirrhosis went to एकदम zero हो गया, मतलब there were no sign of liver cirrhosis anymore. And वो तब से मुझे बोल रही मेडिटेशन कर 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 कर, मैंने कभी नहीं किया. My journey started last year only when I was 2020 में मेरी जर्नी शुरू हुई. वाह, आज दो एक्सपीरियंसेस, एक मधु का और एक निवेदिता का. मैंने निवेदिता जी को तो मैं कई सालों से जानती हूँ, लेकिन सुना आज है, तो वो होता है ना. और मैं ये सोल जब आप मिले तो मैं आई वाज ओके, वी मेट इन दीदी के साथ ना मैरिज पार्टी में मिले थे. बट दैट टाइम आई वाज ओके. एक्चुअली इट वाज इन 2014 इट स्टार्टेड. आई वाज ऑन बेड ऑन 14, तो 13-14 के अराउंड. मेरा भी 2013 में मुझे लिवर सिरोसिस हुआ था and I got healed in 6 months. So that was something very amazing that happened. और मेरा भी 3 months बेड रेस्ट के बाद आई हील्ड और आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड ऑल, सब करना शुरू कर दिया था. बट वो मेडिटेशन से ही मैंने भी किया. आप जैसे बोल रहे हो तो वो शायद इसीलिए हम दोनों का जर्नी सेम है कि, और मैं तो बेड पे लेट के मेडिटेशन, जो लोग कहते हैं बैठ के, मैं तो बैठ ही नहीं सकती थी, तो मैं लेट के मेडिटेशन ही करती थी 40 मिनट्स 1 hour. एंड उसी में आई थिंक आई सॉ माय पास्ट भी एक बार ऐसे, शायद उसी करते करते में ही. फिर उसके बाद आई वेंट फॉर डॉक्टर न्यूटन्स वर्कशॉप एंड ऑल. वंडरफुल लिसनिंग टू यू. हम मधु, आप कुछ बोल रहे थे शायद बीच में. नहीं, ठीक है, मैंने भी वही बोला कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी हीलिंग की, तो डेफिनेटली वी गेट हील्ड. तो इट इज जस्ट अबाउट अ डिसीजन एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी नीड टू टेक फॉर आवर लाइफ. तो मधु, मैं एक चीज आपने जो बोली कि आई डोंट बिलीव इन सेल्फ हीलिंग, तो मैं भी कई बार, आई बिलीव इन सेल्फ हीलिंग. Oh, sorry. You believe in self-healing. You don't believe in healing others through maybe pranic or reiki or whatever. और जो हम लोग ये अभी 1-1.5 साल से JTTP कर रहे हैं, वहां पर भी यही बोला जाता है कि अगर आप किसी के साथ, चाहे कोई भी हो, आप उसको बोलो आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज द पावर लाइज विद इन दैट पर्सन. और उनको अगर हम वो मतलब हम हील ना करें, और वो जैसे वो कल पिछले बार बोला था कि हम किसी का होमवर्क ना करें, उनका होमवर्क वो खुद करें. तो वो मेरा जो रेकी का, मैं भी यही करती हूँ. जो लोग देखो, रेकी में हम लोग हीलिंग करते हैं, पर हमें ये नहीं बोला जाता कि वो मेडिटेट करें. बट मुझे भी शायद यही लर्निंग हुई है कि मैं उनको बोलती हूँ जो ठीक होते हैं और कर सकते हैं, उनको आई आस्क देम टू मेडिटेट विद मी. First of all, I teach them meditation and I ask them to do with me. और इधर से I do healing, but I ask them कि तो वो जल्दी भी होते हैं, और सेल्फ वो होगा तो खुद से always it will be, मतलब वो हमेशा के लिए हो जाएगा. तो I do, but there are few people जो नहीं कर सकते. At times नहीं, there of are course, some इमरजेंसी cases. में तो जैसे कोई इमरजेंसी में है तो तब तो आप मतलब जो चीज आप बोल रहे हो बिल्कुल सही. और ये जो आया है, जैसे आप बोल रहे हो कि दूसरे का, एक्चुअली मैंने ना बहुत साल लगाए लोगों की हीलिंग करने में भी, जब तक मुझे अंदर से नहीं आया कि मैं दूसरे की हीलिंग करूं, क्योंकि अपने को हील किया तो पहले अपने को ठीक रखना है, और उसके बाद मैंने सीख के दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया. एंड फॉर 5 years आई वाज डूइंग इट फॉर फ्री, इवन टीचिंग एंड हीलिंग एवरीथिंग, 5-6 years. उसके बहुत टाइम में जो अपने अंदर से जो स्पिरिचुअल जर्नी आया, जैसे आंसर्स आए, और गॉड की, मतलब मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि मुझे हीलिंग करना है या नहीं. तो अभी लास्ट 2 years से ही मैं, शायद यूनिवर्स चाहता है, और वो भी मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, खुद से अपने आप से आता है. कहीं से भी कोई भी अपने आप आता है, वो उसका आई डू. और वो भी अगर नहीं हो रहा होता मेरा मन, तो मैं नहीं करती. निवेदिता जी, बस हम अपना थॉट शेयर करें जैसे मधु ने शेयर किया. मैं बस, I would also like to add here, since there are two, one is a Reiki healer and a pranic healer, and both are my friends. तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मेरा concept is nothing against healing others. In fact, I do take healings from Swati. She gives me free healings. तो मुझे हीलिंग से कोई परहेज नहीं है, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो पिरामिड मेडिटेशन में, कि
अगर हम किसी और को हील कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर कोई हीलिंग के लिए आस्क कर रहा है तो देयर इज नो हार्म, दिस इज व्हाट आई फील. बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज सेड कि एवरीबडी कम्स विद अ सोल प्लान, सोल जर्नी के साथ आता है, अपना एक डिसीजन लेके आता है कि हमें ऐसे 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 करना है अपनी लाइफ में. अब अगर आई एम इंटरफियरिंग इन योर सोल जर्नी, तो इन दैट केस आई एम डूइंग मोर बैड टू यू देन अ गुड कर्मा. तो दिस इज बिकॉज वी फील कि अगर कोई भी मुझसे बोलता है कि हीलिंग कर दो, आई टेल हिम कि चलो आई विल टीच यू मेडिटेशन, हाउ टू हील योरसेल्फ. By being positive, by being in gratitude, by being practicing self-love, you can heal yourself. And I am also a Reiki level 2 I have done. I had been practicing Reiki, but now after this school of thought I have joined, I've stopped giving Reiki to even my parents or my kids. So I'm not anti any of them, but जैसे स्वाति करती है, and I'm very happy for her कि yes, आपका लाइफ का पर्पस यही है कि आप दूसरों को हील करो. तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट आई डोंट बिलीव, तो आई डोंट डू. And maybe at a later stage I like to heal others, so even I would take pranic healing or Reiki, whatever. It is okay. Very So true. nothing wrong. Yes, Well nothing said. wrong in it. It is अपना perception about procedure. Well said. Well said. अगर किसी का सोल जर्नी में किसी का मैपिंग ही ऐसे है कि हीलिंग करनी है और करवानी है, then also it will become feasible. And we are on different stages in our different states in our lives. So wo universe make you do that. So wherever you are now, Madhuji, Yes. there it is good for you and others also, that as an individual we should be concentrate within ourselves only. Yes, That's exactly. it. Thank you. Thank you. Yes, I do believe this कि it is everybody's soul journey, एकदम unique है, तो we should never judge others कि what they are doing. So it is perfectly fine. मैं And we are here to spare each other. Yes, yes, Anuradha ji. मैं आई एम टोटली एग्रीइंग विथ यू. मैं बस एक और चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए. आई थिंक वी आर ऑल एग्रीइंग एक शब्द से दूसरे शब्द, है ना. निवेदिता जी और मधु जी ने जो बात कही कि वो उन्होंने अपने आप को मेडिटेशन से हीलिंग किया, उससे मेरा एक थॉट ट्रिगर हुआ कि मुझे ऐसे लगता है कि जो हमें मतलब उस वक्त ये बता देता है कि आप मेडिटेशन करो, तो उसका वो एक गुरु है या एक थॉट सिस्टम है, उसके बड़े मायने होते हैं. यू नो व्हेन इट कम्स एट द राइट टाइम टू हेल्प, उसके प्रति मतलब मैं मतलब शुरू से ही मतलब रही है, लेकिन 1-2 महीने से जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो व्हेन समबडी कम्स इन आवर लाइफ वी आर प्रिपेयर्ड एंड इट हैपेंस, तो तब ऐसा लगता है एक मिरेकल हो गया. जैसे कि जब अगर मैं बीमार हूँ और मुझे बता दिया कि भाई मेडिटेशन से एक रास्ता खुल गया, तो वो एक मिरेकल जैसा है. क्योंकि मैं एक बचपन में एक बार मैं मतलब 10 साल, तो जब एलोपैथी का 2 साल तक हुआ, फिर बाद में एक होम्योपैथिक डॉक्टर आए, तो व्हेन दैट होम्योपैथिक डॉक्टर, मेरे को जब भी डॉक्टर की इमेज आती है ना, तो वो डॉक्टर आ जाते हैं. और खैर मैं उस वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से जाकर मैं ठीक हुई. बट यू नो इट इज सो मच ऑफ लाइक ग्रेटिट्यूड इज अ स्मॉल वर्ड, बट ऐसे लगता है कि वो भगवान ही आ गए मेरे को बचाने के लिए उस वक्त. जो भी रास्ता दिखाता है, चाहे दवाई का रास्ता दिखाए या मेडिटेशन का रास्ता दिखाए, तो गुरु बोलना या टीचर बोलना या राइट पर्सन बोलना, वो भी एक, और ये राइट मोमेंट आना, राइट लर्निंग होना, वो भी एक ब्लेसिंग ही है. तो मेरे मन में वो ट्रिगर हुआ कि आपको जो सही रास्ता मिला और आप आगे बढ़े, कि शेयरिंग से मुझे आज ये मिला. और 3 मिनट रह गए, और लाइक सो मच thank you to everybody, and if some last Thank word, you thoughts. for the wonderful sharing. Thanks. Thank you so much. Thank you, Swati, once again. Thank you, Swati, for joining. Thank you everybody. Thank you. Thank you both. If you Thank you. bye. Thank you. Thank you. Bye bye.